Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting. The book is available to you people. Today we are solving the question number 5. A tractor was purchased on 1st January for rupee 4 lakh. The estimated working capacity is 2 lakh hours. The cost of the asset is 4 lakh and the working capacity is 2 lakh. The residual value is 50,000 and the tractor working as under tractor has worked in 1995 for 42,000 hours, in 1996 for 38,000 hours, in 1997 for 28,000 hours, in 1998 for 36,000 hours, in 1999 for 32,000 hours, and in 2000 for 24,000 hours. You are required to calculate a depreciation rate according to unit of output method and also required to prepare the schedule for 6 years. First of all, we are going to fulfill the requirement number 1 and we will calculate the rate of depreciation. Calculating the rate of depreciation. Cost is 4 lakh. Residual value is 50,000 and total capacity to produce is 2 lakh. So I have to just put the formula first, minus residual value or the scrap value and divided by total capacity of production. Before watching this video or clearing your concept, you must have to watch my previous video, because in my previous video I have already provided the introduction of this method and I have already solved 2 questions for 2 or 3 questions on this method. And in this video I'm solving other numericals to make your concept more clear. Just I have put the numerical values in the formula and the answer comes with me is rupees 1.75. It is the rate. We have solved the requirement number 1, which is regarding the calculation of rate of depreciation. Now I have to prepare the schedule of depreciation. Schedule of depreciation. First of all, I have to prepare the basic column. It's year. Second basic column, cost. Third, not basic column but unit of production column. In this column working hours is given, so I will write working hours. In the last question production unit was given, so I write the production unit. Next rate. These 2 columns are just come in this method, unit of output method. Now again I move towards my basic column, annual depreciation, then accumulated depreciation, and the last one is book value. This question give you the requirement for 6 years, year 1, year 2, year 3, 4, 5 and 6 year. This is the whole calculation for 6 year. सिंपल क्वेश्चन है, हमने शेड्यूल बना लिया है, कॉलम्स हमें क्लियर है. कॉलम्स में बेसिक कॉलम हमारे पास एयर का है, कॉस्ट का है, एनुअल डेप्रिसिएशन का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है और बुक वैल्यू का है. और हमारे पास जो 2 बेसिक कॉलम है जो यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड में यूज़ होते हैं वो वर्किंग आवर्स है और रेट है. वर्किंग आवर्स और रेट का कॉलम सिर्फ और सिर्फ इस मेथड में यूज़ होता है. किसमें? यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड में. ये बात आप लोगों ने अपनी माइंड में रखनी है.
इस क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स है तो मैंने वर्किंग आवर्स मेंशन किया है। लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन थे तो मैंने यूनिट प्रोडक्शन मेथड की थी। जिस तरह का आपका क्वेश्चन हो उसी किस्म के वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये आपके बेसिक कॉलम्स है, एयर, कॉस्ट, एनुअल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन के हर मेथड में तकरीबन आपको ये कॉलम मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं किसकी तरफ, कॉस्ट की तरफ। तो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, हमने सिर्फ उसको पुट कर देना है कॉस्ट के कॉलम में। अब तक हम इतने क्वेश्चन इस मेथड पे कर चुके हैं कि आई होप आप लोग मुझे वॉच करते हुए मेरे साथ साथ नहीं बल्कि मेरे से आगे आगे जा रहे होंगे। वर्किंग आवर्स भी हमने क्वेश्चन में मेंशन है, सिर्फ हम लोगों ने उठाकर लिखने हैं जो हमने आपको बताए थे 1995 के लिए 1990। अच्छा, इसमें हमारे पास ईयर्स मेंशन है जिसमें हम 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, हम ईयर मेंशन करेंगे। 1995 का हमें गिवन था, ठीक है, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड 2000। फिर हमें 1995 के आगे क्या गिवन था, 1995 के आगे गिवन था कि हमने 42,000 आवर्स जो है स्टॉक को यूज़ किया है। फिर अगले साल हमने 38,000 आवर्स इसको यूज़ किया है। फिर 28,000 आवर्स हमने इसको यूज़ किया है। फिर 36,000 आवर्स हमने इसको यूज़ किया है। फिर इसके बाद 32,000 आवर्स हमने यूज़ किया है और लास्ट वन 24,000 आवर्स हमने स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास रेट आ गया था 1.75। तो वो रेट हम लोगों ने सेम तमाम ईयर्स में लिख लेना है। अब तक हमने कोई काम नहीं किया, सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था हमने उसको उठाकर लिखा है। आई होप कि एनुअल डेप्रिसिएशन भी अब आपको आती होगी, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन हमने करना और कुछ नहीं है, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 42,000 को 1.75 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 73,500 आता है। इसी तरह 1.75 को मैं अगर 38,000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 66,500 आता है। 28,000 को अगर मैं 1.75 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 49,000। अगर मैं 36,000 को 1.75 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 63,000। और इसी तरह 32,000 मल्टीप्लाई 1.75 आई विल गेट 56,000 एंड 42,000 बाय मल्टीप्लाइंग 24,000 टू 1.75। अगर आप देख रहे हो उस क्वेश्चन में तो जितने हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ करें उतनी ही हमारी डेप्रिसिएशन है। जिस साल हमने ज़्यादा यूज़ किया है उस साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा है और जिस साल हमने कम यूज़ किया है उस साल डेप्रिसिएशन कम है। तो ये मेथड हम लोग स्पेशली इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो यूनिट्स, वो एसेट्स जिसको हम अपने यूज़ की बेस पर डेप्रिसिएट करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। बाकी हमारा मेथड सिंपल वही है जो हम बार बार करते आए हैं। अब तक की हमारी डेप्रिसिएशन 73,500 है। नेक्स्ट ईयर अब तक हम कितना यूज़ कर चुके हैं, 73,500 लास्ट ईयर यूज़ किया था। 66,500 इस साल यूज़ किया है। तो अब तक हम लोग 1,40,000 का एसेट यूज़ कर चुके हैं। 73,500 प्लस 66,500। अब थर्ड ईयर आ गया, हमें कहीं कितना यूज़ कर लिया तो 1,40,000 प्लस 49, क्योंकि 1,40,000 तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम यूज़ कर चुके हैं। और इस साल हमने कितने की वैल्यू यूज़ कर ली है, 49,000 की। तो हमारे पास आता है 1,89,000। 1,89,000 अब तक यूज़ कर लिया है। अगला साल भी गुजर गया, 63,000 अगले साल यूज़ कर लिया। तो अब तक हम इस एसेट की वैल्यू यूज़ कर चुके हैं 22,52,000। फिर हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं मज़ीद कि हमने इस साल 56,000 मज़ीद यूज़ किया है। अब तक हम लोग 1,52,000 यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास आता है 3,08,000। 3,08,000 हम अब तक यूज़ कर चुके हैं। 42,000 इस साल की डेप्रिसिएशन है तो हमारे पास आता है 3,50,000। लास्ट कॉलम हमारे पास एसेट कितना रह गया, 4 लाख का एसेट था। 73,500 हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो 3,26,500 हमारे पास इसकी वैल्यू अभी भी रहती है। जब दूसरा साल आया 4 लाख का एसेट था, 1,40,000 हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो ये एसेट हमारे पास कितने का रह गया, 2,60,000 का। थर्ड ईयर आया, 4 लाख का एसेट था, 1,89,000 हम यूज़ कर चुके हैं। 4 लाख माइनस 1,89,000 तो 2,11,000 की वैल्यू हमारे पास रह गई। फिर 4 लाख का एसेट था, 2,52,000 हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास 1,48,000 रह गया। 4 लाख का एसेट था, 3,08,000 हम यूज़ कर चुके हैं। 92,000 इसकी वैल्यू रह गई। 4 लाख का एसेट था,
3,50,000 यूज़ कर चुकी हैं। 50,000 जो आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ कि आपकी स्क्रैप वैल्यू ही आपकी लास्ट बुक वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए। अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैंने अपने ईयर्स को मेंशन किया है, जस्ट क्वेश्चन से ये अमाउंट पुट की है। कॉस्ट मैंने क्वेश्चन से उठाया है, तमाम ईयर्स में इसी तरह पुट कर दिया। वर्किंग और क्वेश्चन में मौजूद थे, उठाकर मैंने यहाँ पर लिख लिए। फार्मूला अप्लाई किया है रिक्वायरमेंट नंबर 1 के, और उसमें मैंने देखा है तो मेरे पास रेट आया 1.75। अगर 1 घंटा मैं इसको यूज़ करती हूँ तो 1 घंटे पे इसकी कॉस्ट आती है 1.75। मैंने कितने घंटे यूज़ किए? 42,000। तो कितनी कॉस्ट आई? 73,500। 42,000 मल्टीप्लाई 1.75 एंड सो ऑन। इसी तरह हम तमाम सालों का करेंगे। जितने घंटे भी हमने उसको यूज़ किया है उसको हम 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये तो हो गई हमारी स्पेसिफिक ईयर्स की डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमने करना ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। तो अब तक कितनी हुई है? पहले साल के आखिर में अब तक सिर्फ 73,500 हुई थी। दूसरे साल के आखिर में ये भी हुई थी, ये भी हुई थी, तो 1,40,000 हुई थी। तीसरे साल के आखिर में 1,40,000 2 सालों में हो चुकी थी। तीसरे साल 49,000 हो गई। तो अब तक 1,89,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। नेक्स्ट 1,89,000 की अब तक हो चुकी है, और नेक्स्ट ईयर मजीद 63,000 की हो गई। तो 1,89,000 प्लस 63,000 2,53,000 की डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है एंड सो ऑन। इसी तरह हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। बुक वैल्यू में हमने करना ये है कि सिंपली कॉस्ट से हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉलम नंबर 2 से हम एक्यूमुलेटेड को माइनस करते जाएंगे, हमारे पास बुक वैल्यू आती जाएगी। लास्ट में हमारे पास स्क्रैप वैल्यू जो है वो उसका आंसर होना चाहिए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।